बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ट्रेसपास की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ये थी मेरे पास पेज नंबर 67। अब आप अपना पेज नंबर 68 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 68 के टॉप पे आ जाइए तो यहाँ पर हमारे पास है जी ए पार्ट अंडरस्टैंडिंग द पोइम है हमारे पास, और इसके अंदर पार्ट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 का है जी हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट नंबर 1 है हमारे पार्ट नंबर ए हमारे पास फाइंड 4 वर्ड्स इन द फर्स्ट 4 लाइन्स दैट इंडिकेट दैट द वॉकर इज वर्डेड। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये है। 4 words that indicate that the walker is worried, dreaded, cautious, worry, feared. ठीक है, उसके बाद B, what is the walker worried about? He is worried that the owner will come and reprimand him. अब C, why did the walker keep on going even though he is worried? इसका आंसर है the walker keeps on going even though he is worried because everything around him appeared so beautiful. उसके बाद फिर आ जाते हैं डी, द वॉकर मीट्स पीपल एज ही द वॉक्स। what does he thinks they are thinking about him? The walker thinks that the people he meets as he walks are thinking disapproving thoughts about him because he has trespassed. उसके बाद फिर आ जाते हैं ई, what does the walker wish for? The walker wish that he could have such a place for him. उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग दिस क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। उसके बाद इसके अंदर है एफ पार्ट पर द पोएट हैज यूज्ड द सेम वर्ड टू स्टार्ट 6 of the 14 lines in the poem. What is the word? What impact does it have? The poet has used the word and to start 6 of the 14 lines in the poem. The impact is that it creates a sense of an ongoing journey and the sense of connected thoughts that walking often produces. G, how many sentences are in a poem? Is there a different mood or feeling in the last 2 sentences? The poem contains 2 complete sentences, while the first sentence shows worry and dread of the poet. The second sentence shows appreciation of the beauty around him. उसके बाद फिर आ जाते हैं एच पार्ट पर। एच पार्ट है what does the walker decided in the final lines of the poem? In the final lines of the poem, the walker decided not to consider others' land as his own. He feels it would be great to possess such a beautiful place. He does not feel alone. ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम। राइमिंग स्कीम पोइम की क्या थी? तो द पोइम इज रिटन इन द राइमिंग couplets. So the rhyming scheme is A A B B C C D D. उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। काउंट द नंबर ऑफ syllable in each line. What do you notice? Every line has 10 syllables. उसके बाद फिर आ जाते हैं इधर साइड पर ओपिनियन के वाली साइड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है डू यू लाइक द पोएम, एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक और डिसलाइक द पोएम। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला आंसर है आई लाइक द पोएम वेरी मच एज इट मेक्स अस लर्न हाउ टू अप्रिशिएट द simple countryside beauty in a unique way. Alongside, it gives us the lesson of not trespassing other land without their permission. ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंटेंट एंड व्हेन आई गेन द रोड वेयर ऑल आर फ्री। पार्ट नंबर 1 है इसका where had the walker been before he reached the road? So before he reached the road, the speaker had been walking on a private peaceful piece of beautiful property. Part number 2, what happened on the road and what does the walker think? On the road, strangers formed at the walker. The walker thought that he was trespassing the private property. Part number 3, why might a walker want to leave the road to walk elsewhere? A walker might have wanted to leave the road to walk elsewhere so that he could avoid the crowd around and also walk to the more beautiful places. हो गया।
उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन इधर पार्ट नंबर बी के ऊपर। पार्ट नंबर बी हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो सी इफ़ यू कैन राइट अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर नेगेटिव फॉर्म लिखनी है हम लोगों ने, जैसे नॉट एबल है, अनएबल हो जाता है, नॉट विजिबल इनविजिबल, नॉट इनकरेक्ट हो जाएगा, नॉट की जगह इन लगा देंगे इसके अंदर। इसी तरह से सारा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर 70 के ऊपर। पेज नंबर 70 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सी इफ़ यू कैन पिक आउट अ नेम ऑफ द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। आपने एडजेक्टिव बताने हैं कौन कौन से एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं। तो मैंने ये लिख दिया है, देख लीजिएगा। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप से आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। तो आप में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।